In between, I don't know, my video has and audio has been stopped. That's why I asked. Okay. Good evening, everyone, and a very warm welcome to all the aspirants joining us today. On behalf of the Digital Resources and Training Center, New Delhi, I warmly welcome you to this free live strategy session on EMRS KVS NVS Librarian 2006 Tier 2 Preparation Strategy and Roadmap. Today's session is extremely important because Tier 2 is the real game changer in librarian recruitment, as you all know. Tier 1 only qualifies you, but Tier 2 decides your merit, ranking, and interview shortlist. So, if your goal is final selection, today's session will give you clarity, direction, and motivation. Before we begin, a few quick instructions. Let me start. Please keep your microphones muted. Use the chat box for your queries if necessary. This session is informative and interactive, so stay attentive till the end. Let me start with the session context, that is 5.2a. So friends, EMRS, KVS, and NVS Librarian Tier 2 exams test not only knowledge, but conceptual clarity, answer writing skills, time management, subject depth, and all. Unfortunately, many aspirants lose marks not due to lack of knowledge, but due to lack of strategy. To guide you properly, we have with us four highly experienced LIS professionals, each bringing real exam and field experience. So let me introduce the resource persons. First, we have Mr. Javed, College Librarian, Government Polytechnic College, Aligarh, Uttar Pradesh. And now he is designated as UPPSC Department of Technical Education. And he have the PhD in Library and Information Science from Aligarh Muslim University, JRF qualified in Library and Information Science, former school librarian at EMRS 2023 to 24. And Dr. Javed brings direct EMRS working experience, which makes his guidance extremely valuable for aspirants targeting EMRS library posts. So please welcome Mr. Javed, sir. Thank you, ma'am. Thank you. Second, our second resource person is Mr. Sanjay Singh. He'll be hosting from 12 p.m. to 4 p.m. And our second resource person is a dedicated academician and practicing librarian, Mr. Sanjay Singh, librarian, Uttar Pradesh University of Medical Science, Safai Itawa. And he's having the qualification C-Lib, B-Lib, M-Lib, B.Ed, PGDCA, and MA, etc. Actively involved in research, knowledge management, and digital libraries. He presented research at National Conference, Bharati University on Sustainable Development for Vikasit Bharat 2047. And he played a key role in an event where Best Medical Librarian Award 2025 was conferred. Congratulations, sir. And he is interested in AI applications in libraries, digital libraries, academic resource sharing. So please welcome Mr. Sanjay Singh, sir, also. Next, our third resource person is Mr. Kishan Gupta. Our Mission Kishan Gupta, sir, is central government employee. He is having BLIC, MLBIC from IGNO, and UGC NET qualified. And he is an expertise in library automation, cataloging, and user-centered services. And he has the strong understanding of digital and academic library movement. So please welcome
Mr. Kishan Gupta sir also. And move on to our fourth resource person, Mr. Rohan Gupta sir. He is a librarian, researcher, UPUMS, Safari Tower. And he is UGC NET qualified also. He is a librarian grade 2 and serving at Indian Army Headquarters Central Command, Lucknow. And he's implemented AI tools, RFID, DDC based classification. And he, sir is awarded Best Medical Librarian Award in 2025. Congratulations, sir. Recipient of multiple letters and certificates of appreciation. So please give a warm welcome to Mr. Rohan, sir, also. And move on to the session. Let me invite Mr. Rohan, sir, to share his experience. Sir, please. थैंक यू सो मच और वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। सबसे पहले DRTC डिजिटल रिसोर्स एंड ट्रेनिंग सेंटर का दिल से धन्यवाद करना चाहेंगे, जिन्होंने आज हमें और हमारे को ऑथर्स को मंच पे आमंत्रित किया। और EMRS, KVS, NVS, लाइब्रेरियन Tier 2 जैसे एक रोड मैप के उस पे जिस पे हम चर्चा करेंगे। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सभी फैकल्टी मेंबर्स, मेंटोर्स और जो सीरियस लाइब्रेरियंस एस्पिरेंट्स हैं, उनका भी स्वागत है। जो लोग सिलेक्शन ले चुके हैं Tier 1 में और जो नहीं ले पाए हैं, उनके लिए आगे के विशेष हैं कि आगे वो कामयाब होंगे फ्यूचर में जो भी एग्जाम्स आएंगे। तो आज का सेशन सिर्फ एक लेक्चर नहीं है, बल्कि सिलेक्शन ओरिएंटेड डिस्कशन है। और टुडेज सेशन जो है बहुत इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। आज हम आपसे Tier 2 की बात करेंगे, क्योंकि आप भी जानते हैं Tier 1 क्लियर करना कॉमन हो गया है, बट मेन जो है Tier 2 क्लियर करना है, जो कि रेयर स्किल बन चुका है, जो अभी एस्पिरेंट्स को Tier 2 में समझने में थोड़ा सा वो रहता है, परेशानी आती है। तो इसके ऊपर चर्चा करेंगे हम लोग। और सिलेक्शन लाइब्रेरियन का जो EMRS का है, अब नेक्स्ट एग्जाम Tier 1 के बाद 1 से 2 महीने के बाद जो भी है, टाइम कम है, तो उसमें प्रिपरेशन कैसी चल रही है और क्या करना चाहिए, क्या स्टडी मटेरियल को पढ़ना है। इस बार पैटर्न में आप जानते हैं डिस्क्रिप्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों है कंबाइन। तो उसमें Tier 1 क्वालिफाइंग था, जिन लोगों ने भी क्वालिफाई कर लिया उनको बधाई। और Tier 2 आपका जो होगा वो स्कोरिंग और रैंकिंग स्टेज है, फिर फाइनल इंटरव्यू जो है वो मेरिट स्टेज रहेगी। Tier 1 सिर्फ एंट्री था, लेकिन Tier 2 आपकी रैंक डिसाइड करेगा, इसलिए Tier 2 वीक है तो इंटरव्यू कॉल भी उन्हें अनसर्टेन हो जाता है। तो Tier 2 के लिए आपको बड़ी मेहनत करनी है और सब्जेक्ट डेप्थ पे फोकस करना है। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए, लॉजिकल एंड एनालिटिकल प्रेजेंटेशन। 1 मिनट। एम आई ऑडिबल? Yes, sir, you are audible. ओके ओके। तो Tier 2 के लिए मेन 3 पॉइंट्स है। सब्जेक्ट डेप्थ नॉलेज लाइब्रेरी साइंस का, सेकंड कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, और थर्ड लॉजिकल एंड एनालिटिकल प्रेजेंटेशन। क्योंकि प्रेजेंटेशन शब्द इसलिए यूज किया जा रहा है क्योंकि हमें डिस्क्रिप्टिव में यही शो करना है कि हमें जो भी क्वेश्चंस आएंगे डिस्क्रिप्टिव में, उसको हम कैसे प्रेजेंट करेंगे उसको। तो एग्जामिनर यहाँ पे जो भी आंसर आपके चेक करेंगे वो इस मैनर में लिखे होने चाहिए कि कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से पता है और उसको अच्छे से रिप्रेजेंट किया है आपने। सिर्फ डेफिनेशन या फिर पैराग्राफ में आंसर लिखने से काम नहीं चलेगा, एग्जाम्पल के साथ टेबुलर फॉर्म में उसको डायग्रामेटिक फॉर्म में रिप्रेजेंट भी करना पड़ेगा, और जो भी कोरिलेवेंस है, रिलेवेंस है, उसको दिखाना पड़ेगा। Tier 2 सिलेबस में मेनली जैसे लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस के ऊपर फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी साइंस हो गया, नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन है, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड रिट्राइवल, लाइब्रेरी मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन सोर्सेज एंड सर्विसेज,
लाइब्रेरी यूजर्स, आईसीटी एंड कंप्यूटर एप्लीकेशंस इन लाइब्रेरी, जिसका बहुत बड़ा रोल है इस समय। और ये इसका डेप्थ नॉलेज होना बहुत जरूरी है। इसके लिए आपको प्रिपरेशन, जो भी लोग कर रहे हैं वो पढ़ते हुए आंसर राइटिंग भी करना शुरू कर दें, क्योंकि जो जो कॉन्सेप्ट्स हैं, डीप वेब हो गया और एआई टूल्स है, साथ साथ लाइब्रेरी यूजर्स, इंफॉर्मेशन सोर्सेज, इसका थोड़ा आंसर प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है आंसर राइटिंग के लिए। और डिस्क्रिप्शन में हम यहाँ चर्चा करते हैं क्लैरिटी, स्ट्रक्चर, फ्लो और कंटेम्प्रेरी रिलेवेंस के ऊपर। जो कॉमन मिस्टेक्स एस्पिरेंट्स करते हैं वो क्या होता है कि सिलेबस पढ़ लेते हैं, नोट्स भी बना लेते हैं, बुक्स कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन एग्जाम में आंसर इस उनके स्कैटर्ड होते हैं, बिखरे हुए होते हैं, अप टू द पॉइंट नहीं होता, रैंडम आंसर होता है। तो एग्जामिनर जो होता है वो चेक करता है जब, तो उसके पास इतना समय भी नहीं है और ये भी नहीं है कि आपका अगर आंसर अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं है तो उसमें मार्क्स कट जाते हैं। डिस्क्रिप्टिव में खास करके जैसे बीली बम्बलिप के आप आंसर्स लिखते होंगे, तो कई लोग का कहना रहता है सर हमने इतना अच्छा लिखा फिर भी मेरे परसेंटेज कम क्यों आए। क्यों? क्योंकि आप अप टू द पॉइंट नहीं लिखे हैं। आप जो पूछ रहा है उससे भटक करके पूरी कहानी लिख डाले, लेकिन अप टू द पॉइंट आपने नहीं लिखा, इसलिए क्योंकि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं है। और कॉन्सेप्ट ना क्लियर होने की वजह से भी बच्चे थोड़ा बहुत तो लिख पाते हैं, लेकिन मोस्टली उनका वो दिक्कत होता है और फिर वो कॉन्सेप्ट से भटक जाते हैं, तो आंसर नंबर कम मिलते हैं। तो आइए हम आगे अपने इसी चीज को दूर करने के लिए हमने रिसेंटली, आप सभी को कुछ लोगों को पता भी होगा कि हमने हमारी बुक भी आई, उसका नाम हमने रखा था द मास्टर बुक फॉर ऑल लाइब्रेरी साइंस एग्जाम, जो कि इसी फोकस पे डिजाइन की गई थी कि कॉन्सेप्ट, स्ट्रक्चर और प्रेजेंटेशन आपका लाइब्रेरी साइंस का नॉलेज, जिन लोगों ने कॉन्सेप्चुअली नहीं पढ़ा है, सिर्फ फैक्ट्स पढ़ा है लाइब्रेरी साइंस में, जैसे लाइब्रेरी एक्ट्स पढ़ लिया या फंडामेंटल ये जो भी आपके लॉज पढ़ लिए, एग्जाम्पल्स पढ़ लिया, तो उससे अब आने वाले टाइम पे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं केवीएस, एनवीएस, एमआरएस में। अभी तो जनरल पेपर था टीयर वन आपका, अब टीयर टू में आपके कितने डेप्थ पे नॉलेज है लाइब्रेरी साइंस की, ये पूछा जाएगा। वो आपको जानना बहुत जरूरी है। और इसमें हर टॉपिक का इवोल्यूशन टाइमलाइन के साथ एक्सप्लेन किया गया है। कमिटीज, पॉलिसीज, एक्ट्स को टेबल और डायग्राम में प्रेजेंट किया गया है, ताकि लर्निंग रटना न रहे और वो आपको समझ में भी आए। क्योंकि क्या होता है, हम लोग हमेशा रटने की कोशिश करते हैं, जो कि एग्जाम्पल जैसे होता है, तो अब रट के नहीं, अब समझ के डायग्राम के फॉर्म में पढ़ने की जरूरत है। थ्योरी के साथ साथ एग्जाम ओरिएंटेड एक्सप्लेनेशन की जरूरत है हमें, और बेगिन से लेके शुरुआत से लेके एडवांस लेवल तक का समझने की जरूरत है। जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे लाइब्रेरी लेजिस्लेशन है, तो स्टेट वाइज एक्ट्स होते हैं, उसका क्या इम्पैक्ट है, कैटलॉगिंग के रूल्स क्या थे, इवोल्यूशन क्या है, क्या उसके डायग्राम्स हैं, इंडेक्सिंग का सिस्टम, क्रोनोलॉजी डेवलपमेंट सब जानना है, इंफॉर्मेशन सिस्टम का कॉन्सेप्ट। इससे एस्पिरेंट को लिखने में भी फ्रेमवर्क मिलता है। तो एक ऐसी चीज, स्टडी मटेरियल, जिससे आप कॉन्सेप्ट्स को समझते हुए, जितने भी टफ कॉन्सेप्ट हैं, सिर्फ इन्वेंटर्स और फाउंडर्स को पढ़ लेने से अब काम नहीं चलेगा। अब आपको हर एक चीज, इंडेक्सिंग, एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विसेज क्या होती हैं, इंफॉर्मेशन सोर्सेस क्या हैं, यूजर एजुकेशन क्या है, ये सबको अच्छे से समझना पड़ेगा विद एग्जाम्पल। और उसके बाद तभी आप जाके अच्छे से लिख पाएंगे। और थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं एमआरएस लाइब्रेरियन टीयर टू का एग्जाम पैटर्न जो है, जो कि एग्जाम जो है सब्जेक्टिव होना है, यानी लाइब्रेरी साइंस के ऊपर, जिसमें डिस्क्रिप्टिव एंड ऑब्जेक्टिव कंप्यूटर, डिस्क्रिप्टिव एंड ऑब्जेक्टिव पेपर होना है 100 मार्क्स का। और टोटल क्वेश्चंस 55 यानी 55 होने हैं, और 3 घंटे का समय रहेगा आपके पास। ऑब्जेक्टिव 40 क्वेश्चंस होंगे, 40, और डिस्क्रिप्टिव 15 क्वेश्चन, सब्जेक्ट स्पेसिफिक दोनों रहेगा। ऐसे ही केवीएस, एनवीएस टीयर टू का एग्जाम पैटर्न, अभी तो रिजल्ट नहीं आया है, लेकिन फिर भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस उसमें 60 है और डिस्क्रिप्टिव 10 है आई थिंक। तो टोटल 70 क्वेश्चन है 100 मार्क्स के, उसमें 2.5 घंटे का समय रहेगा। तो दोनों एग्जाम्स में थोड़ा सा टाइमिंग का वो है कि एक 3 घंटे का, एक 2.5 घंटे का है, और क्वेश्चंस भी 10 क्वेश्चन ऊपर नीचे हैं। बट ये है कि ऑलमोस्ट डिस्क्रिप्टिव एंड ऑब्जेक्टिव जो कॉमन चीज है पैटर्न, वो यही है।
तो कॉमन पैटर्न को हम पकड़ते हुए चल रहे हैं, तो हमें तैयारी एक जैसी करनी है दोनों लोगों के लिए। ये हमारे सब केवीएस एनवीएस और बुक में जो भी है अब ईपीजी पाठशाला और इग्नू के टेक्स्ट बुक से पढ़ने का समय अब नहीं रह गया कि आप पूरा चीज को डेफिनेशन को अच्छे से पढ़ें। अब समय भी कम है आपके पास, 2 से 3 मंथ से ज्यादा नहीं मान सकता मैं, जहाँ तक है। टीयर 1 का रिजल्ट आ चुका है ये हमारे तक, तो उस हिसाब से आप रिवीजन शुरू करिए अच्छे से। और बुक का मैं अभी शो कर दूंगा आपको, और साथ साथ जो भी डीआरटीसी रिसोर्सेज देती है, नोट्स देती है, और अपना जो भी ये प्रोग्राम चला रहे हैं बहुत अच्छा है। और इसको आप अटेंड करिए, कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़िए। और एमसीक्यूज को मेरा ये रिकमेंडेशन है, बच्चे बार बार पूछते हैं सर एमसीक्यूज कहाँ से पढ़ें, तो जब आप कॉन्सेप्ट को बुक से पढ़ लेंगे हमारे और डीआरटीसी के रिसोर्सेज से, तो आप एमसीक्यूज की सेट के जो पेपर्स होते हैं भारत में पूरे, और यूजीसी नेट के जो लास्ट ईयर के 5 इयर्स के पेपर अगर आप लगा लेंगे, तो एक अच्छा आपका एमसीक्यूज का प्रैक्टिस हो जाता है। क्योंकि लेवल अच्छा रखेंगे आप, अगर कॉन्सेप्ट पढ़े हैं तो लेवल अच्छा रखेंगे। नेट का लेवल का आपका अगर एमसीक्यूज प्रैक्टिस रहेगा, तो साथ साथ आपका ऑब्जेक्टिव जो है वो अच्छा कवर हो जाएगा। और कॉन्सेप्ट्स पढ़ने से आप डिस्क्रिप्टिव में आंसर राइटिंग की मदद से आप अच्छा कर पाएंगे एग्जाम में। तो मेरा एक ऑनेस्ट यही ओपिनियन है कि टीयर 2 को आप रट्टा बेस्ड एग्जाम ना समझिए, इसको ये थिंकिंग बेस्ड एग्जाम है। अगर आप क्लैरिटी चाहते हैं तो स्ट्रक्चर्ड आंसर लिखना शुरू करिए, वही आपका रैंक इम्प्रूव करेगा। और प्रिपरेशन स्ट्रेटजी को साथ साथ ऐसा बनाइए कि पर डे आप कॉन्सेप्ट्स को पढ़िए, राइटिंग की प्रैक्टिस करिए, और उसके बाद एक लास्ट में ऑब्जेक्टिव का ये हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन मॉक टेस्ट दीजिए। लास्ट 5 ईयर के नेट के पेपर और सेट के पेपर, जैसे अदर अदर स्टेट्स में, एमपी में और महाराष्ट्र में अक्सर होते हैं, वो लगाइए, प्रैक्टिस करिए और अच्छे से एग्जाम दीजिए। आपका सिलेक्शन होगा और कामयाब होंगे आप। बाकी मैं थोड़ा सा शो करना चाहूंगा आपको, 1 मिनट वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो दिख रहा है? वीडियो एम नहीं आई देख। ऑडिबल? एक यस, मिनट, we are audible. वीडियो दिख रहा है क्या हमारा फेस? Yes, sir. Only a PPT is shown now. अच्छा अच्छा, पीपीटी है। Mm. तो ये हटेगा तभी दिखा पाएंगे कैसे? Yeah, yes. हेलो, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल, वेलकम टू द सेशन। ऑल द जो लोग भी टीयर 1 क्वालिफाई कर लिए हैं और टीयर 2 के लिए तैयारी कर रहे हैं, उन सभी का स्वागत है। और टीयर 1 क्वालिफाई करना बहुत बड़ी बात है। साथ साथ ये भी कहना था, जो हम भूल गए कहना, कि जीएस को पढ़ना बहुत जरूरी है। जैसे कि आप लाइफ साइंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो कर रहे हैं, उसके साथ साथ जीएस आपने पढ़ा, और फर्स्ट टीयर में आपने देखा होगा जीएस का ही पूरा रोल था। और उसके बाद आईसीटी का लाइब्रेरी साइंस में बहुत बड़ा रोल है। आप आईसीटी को मेन फोकस रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चंस अब आईसीटी के ऊपर भी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आ सकते हैं, जो लाइब्रेरी साइंस यानी लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, जो कि आईटी पार्ट है हमारा इसका। तो थोड़ा सा मैं अपने बुक का वो करूंगा एक बार, जैसे कि ये बुक का आपने अगर कुछ लोगों को पता होगा तो ये बुक है हमारा कवर पेज, द मास्टर बुक फॉर ऑल लाइब्रेरी साइंस एग्जाम्स। इसका सबसे जो मेन चीज, हमने 4-5 साल 10 साल के स्ट्रगल में हमने देखा कि बच्चों को कई बुक से, टेक्स्ट बुक से पढ़ना पड़ता है, फिर भी पूरी चीजें नहीं कवर हो पाती। ये बात सच है कि एक बुक से सब कुछ कवर नहीं हो पाता है, और अलग से हमको ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करना पड़ता है। और कुछ चीजें किसी बुक में अच्छी दी हुई हैं, कुछ चीजें किसी बुक में। तो पहली चीज तो ये रहता है, बच्चों को बुक समझ में आनी चाहिए, जो नोट्स वगैरह है वो समझ में आना चाहिए, चाहे वो जहां से मिले, जिस भी माध्यम से। तो उसका एक्सप्लेनेशन अगर अच्छा होगा तो बच्चे वो कॉन्सेप्ट को कभी भूलते नहीं। जैसे कि मैं कुछ चीजें आपको पेजेस में दिखाऊंगा इसमें। स्टार्टिंग में जैसे हमारे है लाइब्रेरी लेजिस्लेशन इन इंडिया, मतलब लाइब्रेरी एक्ट के बारे में दिया गया है। तो उसका सिर्फ ईयर ही नहीं दिया गया है, ईयर के साथ उसका
डेट है, डेट के बाद रिमार्क नोट भी है साथ में कि ये एक्ट कब आया, इसमें क्या रिमार्क था। साथ साथ इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी है, ताकि ये चीज आप कभी भूले ना, एक बार आप पढ़ लें तो। उसकी समरी भी है लास्ट में, और ऑब्जर्वेशन भी है। ऐसे जितने भी टॉपिक हैं, चाहे क्लासिफिकेशन स्कीम्स हैं आपकी, और हिस्ट्री ऑफ कैटलॉगिंग रूल्स है, सब चीजों को अच्छे से दिया है। तो इसको अच्छे से कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर होगा, और विथ एग्जांपल एक्सप्लेनेशन है, तो कहीं ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ईयर्स भी याद होंगे, एक दो रिवीजन तो हर चीज का बनता है बुक का। और बुक के साथ कोई भी स्टडी मटेरियल आप पढ़िए, कोई भी, मैं अपनी ही नहीं किसी की भी बात कर रहा हूँ, जो भी अच्छे बुक्स हैं अवेलेबल, इग्नू के टेक्स्ट बुक हैं, ईपीजी पाठशाला पे भी आप पढ़ सकते हो। और आजकल तो बहुत सारे डिजिटल रिसोर्सेज हैं, बड़े रिसर्चर्स हैं, लाइब्रेरियंस हैं, तो सबका अपना अपना है। जो भी पढ़िए एटलीस्ट उसको अच्छे से रिवाइज करिए 2 से 3 बार, और उसके बाद आप थोड़ा प्रैक्टिस करिए। एक टाइम बनाइए कि जैसे 6 दिन हम आप थ्योरी पढ़े हैं, तो एक सैटरडे या संडे का समय रखिए, 2 से 3 घंटे मॉक टेस्ट दीजिए, और अपने रिवीजन करिए। सबसे ज्यादा मेन सक्सेस का ये होता है कि जब तक रिवीजन आप नहीं करोगे, तब तक आप किसी चीज में कोई भी चीज आपको याद नहीं रहेगी लंबे समय तक। तो मेरा यही है, आप सभी को शुभकामनाएं हैं टीयर 2 के लिए। और हमने बुक का भी बता दिया, डीआरटीसी का एक बहुत अच्छा पहल है, और उन्होंने सब अवेयरनेस किया है सभी लोगों को। और आप टीयर 2 के लिए अच्छा करें, डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग शुरू करें, जैसे यूपीएससी वाले करते हैं, आप सभी जानते हैं। तो थोड़ा सा आंसर राइटिंग करने से ये रहता है कि आप किसी भी चीज को, जो भी चीज पूछे, जैसे इंडेक्सिंग सर्विस के बारे में पूछे, तो आप इंडेक्सिंग सर्विस के बारे में ही लिखिए। उसका अगर डायग्राम बना सकते हैं विथ एग्जांपल, किस ईयर में किसने क्या कॉन्सेप्ट दिया, तो वो चीजें अप टू द पॉइंट आप एक्सप्लेन करेंगे, तो एटलीस्ट आपको अच्छे मार्क्स मिलने की उम्मीद रहेगी जितने भी क्वेश्चंस हैं डिस्क्रिप्टिव में। और ऑब्जेक्टिव में तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, प्रैक्टिस अच्छी एमसीक्यूज ही होनी चाहिए, तो आपका ऑब्जेक्टिव भी अच्छा जाएगा। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार। Thank you, sir. मैं Thank you. Uh, so now the list is long, and we have three more resource persons. So now I would like to call Dr. Javed Ahmed sir uh, to come on the dice. Now the digital floor is yours, sir. Please come I'm and share your audible. experience. I'm audible. Yes, you're audible. Hello, sir. First of all, hello and good evening to all of you. I'm audible to all the audience. Yes, yes. Okay, okay. So, um, initially, I would like to congratulate and extend my warm thanks to providing this platform, Digital Resources and Training Center, the host team, and basically my very close friend, Mr. Fazal. Thank you so much for inviting me, for having such a fruitful and such a beneficial talk. So, uh, I just want to know that in which language you all are comfortable to talk with me. I think Uh, bilingual. Yes, can I use bilingual? yes, yes, bilingual. We can also use Okay, Hindi. okay, हम हिंदी में भी कर सकते हैं. हाँ. okay, okay. Thank you so much. So, इससे पहले भी मुझसे पहले जो हमारे एक रिसोर्स पर्सन जिन्होंने आप सबके साथ इंटरेक्शन किया है, गुप्ता सर। सर, थैंक यू सो मच फॉर elaborating all these things in a very elaborative manner। और मुझे भी उससे कुछ चीज़ें जो है इंसाइट मिली है कि मैं किन चीज़ों पे मुझे रोशनी डालनी चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं थैंक यू सर, आप थैंक यू लोगों सो से मच। थैंक यू सो नमस्ते सर, नमस्ते। नमस्कार। तो सबसे पहले मैं स्टूडेंट्स के साथ एक बहुत ही जनरल और बहुत ही कॉमन एक जो फैक्टर होता है प्रिपरेशन में किसी भी तरीके के एग्जाम्स में, जो मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है अब तक के अपने इस एकेडमिक करियर में, उस चीज़ पे मैं थोड़ा सा बहुत ही मुख्तसर सा बहुत ही ब्रीफ में मैं एक आपसे डिस्कशन करना चाहूँगा। देखिए, लाइब्रेरी साइंस का जो फील्ड है वो अब बहुत ज़्यादा डायनेमिक हो चुकी है।
जब हमने अपना करियर शुरू किया था, अपनी एकेडमिक जर्नी शुरू की थी, तो उस टाइम पे इस फील्ड को लेके बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं थी लोगों में। और जिस उसी के करस्पॉन्डिंग जो है, जैसी अवेयरनेस थी उसी हिसाब से इसमें करियर प्रोस्पेक्ट्स भी थे। और उसी हिसाब से सारे सिलेबस, चाहे बिलीव का हो या एमलीव का हो, जो भी चीज़ें थी वो प्रिपेयर्ड थी। लेकिन ड्यू टू द पैसेज ऑफ टाइम, थिंग्स आर इन अ वेरी थिंग्स गोज इन अ वेरी डिफरेंट मैनर। तो सिलेबस के बारे में सर ने भी आपको बताया, और आप भी जानते हैं कि चाहे वो बिलीव का सिलेबस हो या एमलीव का सिलेबस हो, बहुत ज़्यादा उसमें चेंजेस होते जा रहे हैं और डायनेमिक हो गई सारी चीज़ें। तो इसमें मैं सबसे पहले ये बोलना चाहूँगा कि यहाँ पे जो ऑडियंस हमारी मौजूद है स्टूडेंट्स की, वो डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूशन से उन्होंने पढ़ाई की होगी। कुछ रेगुलर मोड से होंगे, कुछ डिस्टेंस मोड से होंगे। तो अब यहाँ पे सवाल ये बनता है कि क्या प्रिपरेशन की जो स्ट्रेटजी है, आप अब सेकंड ईयर में एंटर हो गए हैं, एमआरएस के, केवीएस के, एनवीएस के जो आपने एग्जाम्स दिए, उसका जो सेकंड ईयर है आप उसमें एंटर हो चुके हैं। तो वो बच्चे भी हैं इसमें जो रेगुलर मोड से आए हैं, और वो बच्चे भी हैं जो डिस्टेंस मोड से। तो जो जनरल पेपर होता है, वो नॉर्मली वो लोग क्वालिफाई कर जाते हैं जो एक लंबे टाइम से या कुछ टाइम पीरियड से किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा हिंड्रेंस नहीं आती है फर्स्ट पेपर को क्लियर करने में, जो सिंसियर स्टूडेंट्स हैं। लेकिन अब प्रॉब्लम आती है सेकेंड ईयर में जाके, और खास करके उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने रेगुलर मोड में पढ़ाई नहीं की। मैं इस पे बहुत ही टू द पॉइंट ही बात करना चाहूँगा कि जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, ये उनके लिए भी बहुत इजी नहीं है, और जो डिस्टेंस मोड से है उनके लिए तो उनके लिए डिफिकल्टीज आने वाली हैं। तो अब इसमें सवाल ये उठता है कि जो प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी है वो डिस्टेंस मोड के लिए और जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनमें, मतलब कि क्या डिफरेंस हो सकता है। तो मेरा मेरी जो स्ट्रेटेजी रही है वो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। मैंने रेगुलर रेगुलर मोड से ही पढ़ाई की, बिलीव एमली, और इसके आगे का जो भी हमारा मेरी एकेडमिक जर्नी थी। तो रेगुलर मोड से करने के बाद भी मैं जब एग्जाम्स में अपीयर होता था, तो मुझे ये चीज़ फील होती थी कि मैंने कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही डीपली नहीं पढ़ा है। जो अभी गुप्ता सर इससे पहले बात कह रहे थे कि आपकी जो स्टडी है वो एनालिटिकल होनी चाहिए और डीप स्टडी होनी चाहिए। क्योंकि अब जब आप डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस लिखने जाएंगे आप, तो कोई भी टॉपिक होगा उस पे आपको बहुत ही ब्रीफ लिखना है, बहुत ही टू द पॉइंट लिखना है। और उसमें सारी चीज़ें जो है आपको कवर कर लेनी है, जो भी उन्होंने आंसर की वर्ड लिमिट दी होगी। जितने नंबर का भी क्वेश्चन आपका होगा और उसकी जो वर्ड लिमिट होगी, वो उसके अंदर आपको वो सारे पॉइंट्स हाईलाइट कर देने हैं अच्छे से, जो पॉइंट्स एग्जामिनर देखना चाहता है। तो अब ये सवाल उठता है कि आपके पास जो 2 महीने का टाइम है या जो भी ड्यूरेशन बचा है, उसमें आपकी स्ट्रेटेजी क्या हो कि आप अपने सभी सिलेबस को कंप्लीट कर लें और एग्जाम को क्रैक कर पाएं। तो मैं बारी बारी ही इस पे बात करूंगा। पहले मैं थोड़ा सा, जो मैं ज़्यादा कंसर्न हूँ डिस्टेंस स्टूडेंट्स के लिए हूँ, उनको मैं जो है बहुत ही सीरियस नोट पे बात करना चाहूँगा उनसे कि देखिए, आप लोग पहले तो आपको पूरा स्ट्रक्चर अपने सिलेबस का, बिलीव एंड एमलिप का, बिल्कुल ही क्लियर होना चाहिए। बहुत अच्छे से जितने भी टॉपिक्स कवर होते हैं इन दोनों कोर्सेज में, बिलीव में और एमलिप में, आपको बहुत ही क्लियर होनी चाहिए सारी चीज़ें कि क्या क्या एरियाज हैं। ठीक है। दूसरी चीज़ कि आप स्कूल लेवल का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। इस लाइब्रेरियन, ईएमआरएस और केवीएस में ज़्यादातर, मतलब कि कोशिश एग्जामिनर्स की यही रहती है, एग्जामिनेशन बॉडी की यही रहती है कि वो बिलीव लेवल को
क्रॉस ना करें। लेकिन ऐसा नहीं होता कि आप सिर्फ और सिर्फ बिलीव का सिलेबस पढ़ के जाएंगे तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे। तो आपको प्रिपरेशन का जो अपना स्टैंडर्ड है, जो लेवल है, वो आपको एमलिप तक का रखना है। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, जब सिलेबस आपके सामने होगा, तो फिर आप उनके हर एक टॉपिक को, आपको अपने जो टाइम आपके पास बचा है उस टाइम में आप अपनी पढ़ाई का जो शेड्यूल है आपका, उसमें आप उनका डिवीजन कर लीजिए कि आप उन सभी टॉपिक्स को कितने टाइम में कवर कर सकते हैं। चाहे वो क्लासिफिकेशन कैटलॉगिंग का हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट का हो, या आपका आईसीटी का पोर्शन हो, कोई भी पोर्शन, आपके पास जो भी वक्त बचा हुआ है उस वक्त में आपको अपना एक रोड मैप तैयार करना है कि आप उस बचे हुए टाइम में, उस बचे हुए ड्यूरेशन में सभी टॉपिक्स को कैसे कवर करेंगे। आपको टॉपिक सारे कवर करने हैं। बी श्योर कि सेकंड पेपर बहुत अ, अच्छे स्टैंडर्ड का आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि उसमें डिस्क्रिप्टिव है। ऑब्जेक्टिव आप कहीं से भी पढ़ लीजिए, जैसे भी आप, जो भी रिसोर्सेज आपके पास हैं, कुछ एक दो रिसोर्सेज जो मैं जनरली रिकमेंड किए जाते हैं, वो मैं भी आपको वो रिकमेंड कर दूंगा। लेकिन आप अपने जो आपके पास जो रिसोर्सेज हैं, जो किताबें हैं, जो मार्केट में अच्छी किताबें अवेलेबल हैं, या जो भी आपको किसी ने सजेस्ट की है, आप उसको देख के उसको अच्छे से श्योर होके कि उस किताब के कंटेंट सही हैं या नहीं है, फिर आप उस किताब से अपनी तैयारी कीजिए। हालांकि डिस्क्रिप्टिव की तैयारी करने के लिए जो एकेडमिशियंस हैं वो तो यही रिकमेंड करते हैं कि आप इग्नू जैसे नोट्स को, ईपीजी पाठशाला जैसे नोट्स को, या ज्ञानकोश जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पे जो नोट्स अवेलेबल हैं, वो उन जैसे नोट्स को आप ज़रूर कंसर्न करें, अगर आप इस फील्ड में लॉन्ग टर्म एक अच्छा अपना अपनी एक रिकग्निशन बनाना चाहते हैं, अच्छे एग्जाम्स क्रैक करना चाहते हैं, तो क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है, टाइम आपका शॉर्ट है, तो उस शॉर्ट टाइम में आपको वो रिसोर्सेस कंसर्न करने हैं जिनसे आपकी तैयारी इजीली हो जाए। तो अब कुछ रिसोर्सेस मैं हाईलाइट करता हूँ। जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए आपको पहले भी पता होगा, आप करते भी होंगे शायद। तो जैसा कि सर ने भी बताया, और ये बहुत ही कॉमन है कि आप जो है अपने प्रीवियस ईयर के आपके जो क्वेश्चंस है, चाहे वो नेट के हो या सेट के हो, जितने भी एग्जाम्स हाल फिलहाल में हो रहे हैं अक्रॉस अक्रॉस ऑल दी डिफरेंट स्टेट्स, बाय सेट एग्जामिनेशन, एंड नेशनल लेवल पे तो नेट आप एग्जाम दे ही रहे होंगे, या आपके पास वो क्वेश्चन पेपर्स अवेलेबल होंगे, तो उनको तो आपको डेफिनेटली लगाना है, डेफिनेटली लगाना है। जितने भी सेट एग्जाम्स हैं, या किसी इंस्टीट्यूट का हो रहा है, किसी मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में कोई एग्जाम हो रहा है, किसी मेडिकल इंस्टीट्यूट में कोई एग्जाम हो रहा है, चाहे वो एसटीए का हो, पीए का हो, या लाइब्रेरी असिस्टेंट का हो, वो सारे आप ज़्यादा से ज़्यादा उनको कवर करने की कोशिश कीजिए, जितनी आपकी रीच है, और जहाँ तक भी उनको कवर कर सकते हैं उनको ज़रूर कवर कीजिए। और ये स्ट्रेटेजी जो है क्वेश्चन सॉल्विंग की जो होती है, खास खास करके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्विंग की, ये आपको मतलब उस टाइम में शुरू करना चाहिए जब आप बिल्कुल अपने प्रैक्टिसिंग मोड में हो। आप मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, मॉक टेस्ट लगाने से पहले आप अपना टाइम देखिए कि आपके पास कितना वक्त एग्जाम में बचा है, और आपको सारे सभी पेपर्स के, एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट का पेपर है, कैटलॉगिंग क्लासिफिकेशन का पेपर है, सभी एरिया के क्वेश्चंस आपको कवर करने हैं, और वो भी स्पेसिफिक टाइम पीरियड में। ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी। अ, और रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए भी मैं वही कहूँगा कि उन्होंने जो चीज़ें पढ़ी हैं, वो मतलब कि इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट ना रहें कि जो उन्होंने अपने क्लास के टीचिंग के दौरान उनके जो टीचर्स ने पढ़ाई हैं वही सफिशिएंट है। नहीं, आप एग्जाम्स में आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे जो बहुत ही ज़्यादा, मतलब आपको देख के लगेगा कि ये तो मतलब मैंने कभी पढ़ा नहीं है, मुझे कभी दिखा नहीं, ऐसी चीज़ें हैं।
ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। और बाकी इसके अलावा जो स्टैंडर्ड है, जो टफनेस का लेवल है एग्ज़ाम के, उसके बारे में तो प्रीवियस एग्ज़ाम्स के बेसिस पे कुछ भी अभी गेस कर पाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि सिलेबस आपका एग्ज़ाम का पैटर्न चेंज हो चुका है। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों है। 15 मार्क्स का आपका सब्जेक्टिव है, और 15 क्वेश्चंस आपके सब्जेक्टिव हैं, और 40 आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो मैं यही आपसे कहूँगा दोबारा कि आप डिस्क्रिप्टिव के लिए ज़्यादा टाइम दें। लिख के जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, लिख के उसको प्रैक्टिस कीजिए। और उसके बाद जो है, आप ये असेसमेंट ज़रूर कीजिए कि आपने कितने टाइम में एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को कवर किया है। ठीक है, अगर आपका आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने बैठे हैं, तो आपके पास आपका एक वो होना चाहिए कि आपके टाइम स्लॉट होना चाहिए कि मैं इतने टाइम में एक क्वेश्चन को मुझे लिख लेना है, किसी भी किसी भी हाल में। तो वो आपकी प्रैक्टिस से ही होगा। तो वो चीज़ें आप उसका ध्यान रखिए। आईटी का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है। इससे पहले हमारे रिसोर्स पर्सन ने भी ये बात कोट की है। आईटी का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है, और आपको आईटी पे अच्छे खासे क्वेश्चंस दिखेंगे एग्जाम में। और चूंकि एआई और वर्चुअल रियलिटी है, या चाहे और दूसरी चीज़ें मशीन लर्निंग है, इस तरीके की जो चीज़ें इंट्रोड्यूस हो गई हैं हमारे सिलेबस में, तो उससे भी क्वेश्चंस देखने को आपको मिल सकते हैं। अब इनका यूज़ जो है वो लाइब्रेरीज में कैसे हो रहा है, वो उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। इंडियन सिनेरियो में अगर हो रहा है तो कहाँ हो रहा है, विद एग्जांपल्स। और अगर आप उस चीज़ को फॉरेन लाइब्रेरीज के कॉन्टेक्स्ट में कोरिलेट करके अगर लिख सकते हैं, इट विल गिव अ गुड इम्प्रेशन ऑन द एग्जामिनर। तो जो भी रिसेंट चेंजेस हो रहे हैं आपके एरियाज में, जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हो रहे हैं लाइब्रेरी साइंस में, उनको आपको बहुत अच्छे से कवर करना है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लाइब्रेरीज। चाहे वो कोई भी टेक्नोलॉजी डेवलप हुई हो, मैंने अभी बताया AR VR ML, जो भी हो, उनका लाइब्रेरीज के कॉन्टेक्स्ट में क्या इस्तेमाल हो रहा है। इस पे आपको क्वेश्चन सब्जेक्टिव वे में काफ़ी चांसेस हैं कि आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए मैंने आपको बता दिया, आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन सभी लेवल के एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को कवर कीजिए। कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, उनको भी देखिए। लिस्ट क्विज वगैरह जैसे प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। और बाकी बुक्स का सिलेक्शन, जो भी बुक आप कंसर्न कर रहे हैं, मैं मेरी आपको राय सिर्फ यही है कि बुक्स में उन बुक्स को ही आप कंसर्न करिए जिसमें गलतियाँ कम हो। क्योंकि जब हम जब तैयारियां करते थे, तो हम कुछ क्वेश्चंस को लेके हम बहुत टाइम तक डिलेमा में रहे, उसके ईयर्स को लेके कि ये इस ईयर में ये चीज़ हुई है या उस ईयर में हुई है। ये बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि जो 4 ऑप्शन होते हैं उसमें, ऑप्शंस में सभी ऑप्शन इतने, कम से कम 2 ऑप्शन तो उसमें इतने क्लोज होते हैं कि आपको एलिमिनेट करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। 90-48 है, 90-47 है, या 90-49 है, इस तरीके के करके क्वेश्चन। तो ये बुक्स में आपको बहुत ध्यान देना है कि जो भी बुक्स आप पढ़ रहे हैं, कंसर्न कर रहे हैं, उन किताबों में ऐसी गलतियां ना हो। वो किताब प्रॉपर रेफरेंस के साथ उसने अपनी चीज़ों को लिखा हो। बहुत ज़्यादा AI जनरेटेड ना हो, क्योंकि AI जनरेटेड में आपको डेफिनेटली गलतियां मिलेंगी। ठीक है, तो टाइम आपके पास शॉर्ट है। आप उसके अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटजी के साथ अपने टाइम को सामने रखते हुए उसका प्रॉपर डिवीजन करके, और आपको कितना टाइम सब्जेक्टिव के लिए देना है, कितना टाइम ऑब्जेक्टिव के लिए देना है, इन सभी चीज़ों का ध्यान रख के आप एक अपना शेड्यूल बना के तैयारी करें। बाकी इसके अलावा मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। और ऑडियंस की तरफ से कोई भी सवाल हो तो आई एम रेडी टू हैंडल इट। थैंक यू सो मच। सर मेरा एक क्वेश्चन है। अभी जी तक जी जी। जो पढ़ने की अप्रोच रही है पूरे ड्यूरेशन में, मतलब मैं नेट भी क्वालिफाइड हूँ, पिछले अटेम्प्ट में मेरा JRF भी हो गया था।
पर जी। मुझे ऐसा लगता है कि जो आपने भी कहा और रोहन सर ने भी कहा था, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लेवल पे काम नहीं किया गया है। और हम्म, चाहे अभी एमआरएस का पेपर के लिए जाए या फिर इसके बाद केवीएस वाला पेपर के लिए भी, दोनों में मतलब कॉन्सेप्ट जब तक नहीं रहेगा तब तक हम अच्छे से डिफाइन नहीं कर पाएंगे, कोई भी टॉपिक को लिख नहीं पाएंगे। और मतलब सर ने भी कहा था कि मतलब डेफिनेशन और पैसेज लिखने से काम नहीं चलेगा, काफी अच्छे से प्रेजेंटेशन भी देना पड़ेगा। तो मतलब अभी पढ़ते समय, जैसे अभी आपने एक हाईलाइट किया कि टू मतलब सिलेबस को पढ़ते चले जाएं और साथ साथ मतलब देखने की भी प्रैक्टिस करें। अभी पढ़ने की क्या अप्रोच होना चाहिए? क्योंकि मतलब जो इग्नू है और ईपीजी है वो काफी बड़ा है, और हमारे पास मुझे ऐसा लगता है कि 1.5 से 2 महीने ही है शायद एग्जाम के लिए। तो अभी मतलब क्योंकि वन लाइनर अप्रोच से तो आज तक पढ़ते रहे हैं सर, और मतलब एग्जाम के लिए उस तरह से पढ़ने का मतलब उसको कैसे पढ़े, या फिर कैसे क्या अप्रोच होनी चाहिए हमें? ओके, थैंक यू। व्हाट्स योर नेम? व्हाट्स योर नेम? आई एम ऑडिबल? हेलो? 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 यस सर। ऑडिबल हाँ, सर, मेरी ऑडिबल। ऑडिबल? तो ऑडिबल सर। अभी, हाँ, जिन्होंने अभी सवाल पूछा था वो है ना, अभी यहाँ पे मौजूद है वो? सर होने तो चाहिए सर, लेकिन अभी आवाज नहीं आ रही, उनका रिप्लाई नहीं है वापस। हाँ, मैं उनका जवाब मैं देने जा रहा था, तो मैंने इसलिए कंफर्म किया कि वो हैं या डिस्कनेक्ट तो नहीं हो गए। हेलो? डिस्कनेक्ट तो सर नहीं लग रहा है। हेलो? हेलो सर, हेलो। डिस्कनेक्ट नहीं है। 26 5 सीट पे पहले थे और 26 अभी है। ओके, ओके, तो वो मैं इसका चैट पे जवाब। सर, वो चैट पे अवेलेबल है सर, वो माइक्रोफोन का। अच्छा, 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 अच्छा। शैल आई स्टार्ट? हाँ सर। चलेगी आंसर? ओके, यस सर। ओके, ओके। देखिए, जो इन्होंने सवाल पूछा है वो बहुत ही रिलेवेंट क्वेश्चन है, और बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो रेज होता है ऐसे टाइम में, जब आप बिल्कुल प्रिपरेशन के अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे पड़ाव पे चल रहे होते हैं, जब आपके पास टाइम बहुत कम होता है और आपका एग्जाम बहुत नज़दीक होता है। तो आपको ये चीज़ें, ऐसे सवाल उठना लाजमी है। देखिए, मैं इस पे मेरा जवाब ये रहेगा आपको कि आपको पहले तो ये डिसाइड करना है कि आप जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, क्या आप सिर्फ उसी एग्ज़ाम को अपना लास्ट डेस्टिनेशन मानते हैं, या आप उसके अलावा आगे भी दूसरे एग्ज़ाम्स में अपीयर होंगे। पहली चीज़ तो ये है, क्योंकि जब आप किसी चीज़ की इन डेप्थ स्टडी शुरू करते हैं ना, तो इन डेप्थ स्टडी को कंप्लीट करने के लिए आपको एक सफिशिएंट टाइम तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है? तो आपको ये चीज़ बिल्कुल, इस कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में बिल्कुल क्लियर कर लेना है कि क्या आपको जो एग्ज़ाम जो आप देने जा रहे हैं अभी हाल फिलहाल में कुछ महीने में, क्या वो आपका लास्ट डेस्टिनेशन है, या आप उसके आगे भी दूसरे एग्ज़ाम्स में बैठेंगे। अगर आपका वो लास्ट डेस्टिनेशन है, तो तब तो फिर आप जो है, जो भी आपके पास रिसोर्सेस अवेलेबल हैं, उनको आप बहुत ही ब्रीफ में पढ़ लीजिए, जितना भी आपके पास टाइम अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग। उसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को पढ़ लीजिए। उसके इम्पोर्टेंट उसका जो भी कंटेंट इम्पोर्टेंट है, उसमें से आप चीज़ों को फिल्टर करके आप पढ़ लीजिए। आप मेरिट लिस्ट में तो आ ही जाएंगे। ठीक है? लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं कल को इससे कोई दूसरा बड़ा एग्जाम भी दूंगा, इससे दूसरा बड़े लेवल पे भी मैं अपीयर होने की कोशिश करूंगा, बैठूंगा किसी एग्जाम में, तो फिर तो आपको, आप अपनी जो है कंसिस्टेंट जो आपकी जो तैयारी है, आ, कोई भी पर्टिकुलर एरिया आप स्टडी कर रहे हो, चाहे वो क्लासिफिकेशन कैटलॉगिंग का हो, आईसीटी का हो, या कोई भी हो, उस पर्टिकुलर एरिया में जो जो टॉपिक्स हैं वो आपको इन डेप्थ स्टडी करने ही करने हैं। अदरवाइज आप कहीं ना कहीं जाके अपने करियर में
आप एक बार आपके ऊपर स्टॉप लग जाएगा, आप उसके आगे नहीं बढ़ पाएंगे क्योंकि आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है। आप एग्जाम्स कुछ ना कुछ जरूर क्लियर कर लेंगे। जैसे ईएमआरएस और केवीएस का लेवल तो स्कूल लेवल तक का ही एग्जाम है ना ये। तो आप थोड़ी बहुत मेहनत करेंगे तो आप ये एग्जाम क्रैक कर लेंगे। लेकिन उस थोड़ी बहुत मेहनत से ये बिल्कुल भी श्योर नहीं है कि आप कल को किसी यूनिवर्सिटी लेवल का एग्जाम, किसी इंस्टीट्यूट का, या किसी दूसरे किसी चाहे वो साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन हो या कोई और बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो, आप उसके भी एग्जाम क्रैक कर लें, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है और गारंटीड नहीं है। क्योंकि वहां पे जब आप जाएंगे तो ऑब्वियसली आपको हर एरिया पे कॉन्सेप्चुअल नॉलेज चाहिए ही चाहिए। अगर आपने रिटर्न निकाल भी लिया तो इंटरव्यू में जो पैनल आपसे सवाल पूछेगा वो किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे आपकी बिल्कुल डीप नॉलेज को ही चेक करता है। इसलिए मेरी राय यही है आपसे कि अभी आपके पास जो टाइम है, इस टाइम का ध्यान रखते हुए और आप अपनी जो तैयारी है उस तैयारी का जरा असेसमेंट कीजिए कि आपने जो तैयारी की है क्या वो सफिशिएंट है इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए या नहीं। और उसके बाद फिर उसमें भी देखिए, फिर सभी टॉपिक्स तो आपको के वीक नहीं होंगे। जैसे मैं कहता हूँ कि कुछ लोगों का कैटलॉगिंग वीक होता है, या कुछ लोगों का आईसीटी वीक होता है, किसी का एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट का पोर्शन वीक होता है। तो आपको ये देखना है कि आपको किस एरिया में ज़्यादा मेहनत करनी है, कौन सा टॉपिक आपको ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है। आप सभी टॉपिक तो नहीं पढ़ पाएंगे 2 महीने के अंदर, लेकिन कम से कम उन टॉपिक्स को ज़रूर पढ़िए जो जिसपे आप बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं हैं। ठीक है, दैट्स ऑल। थैंक यू। Yeah, please ask Rekha Kushwaha ji. Rekha, you may ask your question. Shubham, are you there? Yeah, Rekha, is there any question or Shubham or anyone else? Excuse me, sir. Can I ask a question? Yes, yes. Sir, I want to ask that the shift in the exam pattern for the said examinations, like EMRS and KVS, from objective to subjective, uh, uh, it being based on a school level examination. What is the intention of you know, intention of them? Like, why do they shift from that pattern to this pattern? What do they want from the students? Basically, they want such a librarian who can support the teaching learning objectives of the school. You know? So, a librarian who must have the basic understanding of their field of the library science. You know? They must have in-depth knowledge of their subject. You know? As far as MCQs are concerned, you know, so the person who has no knowledge about library science, they may there is a possibility है ना
if he attempted all the questions है ना, so there is a possibility that he or she may crack the exam है ना, as far as MCQs are concerned. So by his or her luck है ना. But if you talk about the descriptive questions, so the person who has good understanding and have the command over the subject, only they can crack the exams. So this is the as per my knowledge, so this is the reason है ना, why they shift from the total MCQs to the descriptive questions. Now there is both type of questions, MCQs as well as the descriptive. So there is maybe the reason है ना, to evaluate the subject knowledge of the library professional and of the librarian. That's why they introduced the descriptive questions. And because if you want to write the descriptive answer, and if you have to write the descriptive answer, then you must have the command over the subject. You have to read all the topics of the syllabus thoroughly. But when you are focusing on MCQs, then no need to in-depth study. No need to study in depth. Are you getting my point? Am I audible? Yes, sir. हाँ, तो दिस माइट बी द रीजन है ना, यानी कि जब आप को एक अच्छी कमांड होगी आपके सब्जेक्ट पर है ना, ओनली देन यू विल एबल टू राइट द आंसर है ना। और वो आंसर कैसा होगा, यानी वो भी आपकी एक्सपर्टीज के ऊपर डिपेंड करता है ना, कि कितने कम वर्ड में और आपने कितनी ज्यादा बातें कह दी है ना। आपने इधर उधर की बात ना करेंगे बल्कि टू द पॉइंट आपने बात करी, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ना? आप वहां पर आपको पेज नहीं भरने हैं, वहां पर आपको 3 पेज 4 पेज आपको कॉपीज नहीं भरनी है, वहां का मकसद कॉपीज भरना नहीं है, बल्कि वहां पर क्या है कि आपको कम वर्ड में टू द पॉइंट बात करनी है ना। 100 to 120 वर्ड्स में आपको जो है उसका आंसर देना है ना। तो ये वही कर सकता है जिसको नॉलेज होगी, जिसको कमांड होगा सब्जेक्ट के ऊपर, जिसने पढ़ा होगा है ना, जिसने मेहनत करी होगी। सो ओनली दोज कैंडिडेट कैन क्रैक द एग्जाम और पास द एग्जाम है ना। तो वहीं अगर आप एमसीक्यूज को देखें तो बस आपने जो है वो एमसीक्यूज को देखा, और इन डेप्थ में पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। उसके अंदर आपने कुछ ईयर्स याद कर लिए, कुछ फैक्चुअल चीजें याद कर ली आपने है ना, और नहीं भी आया तो आपको ना कोई ऑप्शन टिक करके आ गए है ना। तो वहां पर चांसेस रहते हैं कि आप जो है वो, या जिसको नहीं आता, जिसमें मेहनत नहीं करी, हो सकता है इसका लक ऐसा हो अच्छा कि वो क्रैक कर जाए। हालांकि ये भी पॉसिबिलिटी कम होती है, लेकिन फिर भी उस लेवल की स्टडी हमें नहीं करनी पड़ती है जहाँ पर हमें सिर्फ MCQs को कवर करना है ना। वहीं अगर हमें डिस्क्रिप्टिव है, हमें लिखना भी है, देन वी हैव टू स्टडी इन डेप्थ है ना। हमें फिर अच्छे से लिखना होगा, अच्छे से पढ़ना होगा, तभी हम अच्छे से लिख पाएंगे है ना। लिखना भी क्या है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट है ना, कि आपको कैसे फ्रेम करना है आंसर को है ना, ताकि आप एग्जामिनर को जस्टिफाई कर सकें, आप एग्जामिनर को सेटिस्फाई कर सकें है ना। एक क्वेश्चन है, पूछा गया है ना, एकेडमिक लाइब्रेरीज के ऊपर कोई क्वेश्चन है ना, एकेडमिक टाइप्स ऑफ एकेडमिक लाइब्रेरी या फिर लाइब्रेरी सर्विसेज है ना, ऐसा कोई क्वेश्चन है, आप उसका आंसर लिखना है। तो अब 100 कैंडिडेट है, तो हर 100 कैंडिडेट का आंसर अलग हो सकता है ना। इट डिपेंड्स अपॉन देयर अंडरस्टैंडिंग है ना, उनकी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि उस वो आंसर क्या लिख रहे हैं है ना। तो इसी तरह से कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, कुछ डिस्क्रिप्टिव है ना, नॉर्मल जो सिलेबस बेस्ड हैं, या कुछ सिचुएशनल क्वेश्चंस आपसे पूछ सकते हैं ना, कि आप कैसे जो है
यूजर्स को हैंडल करेंगे, है ना, जो मिसबिहेव कर रहा है या फिर जो है वो रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा है ना, लाइब्रेरी में शांति को मेंटेन नहीं कर रहा है, तो आप कैसे मेंटेन करेंगे? या बुक बुक प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस क्या है, उसका क्या प्रोसीजर है? अगर आप उसको किताबों में पढ़ेंगे तो बहुत लेंदी आपको उसके आंसर मिलेंगे, है ना, लेकिन आपने क्या करना है, आपने 100 to 120 वर्ड्स में आपने वो सारी बातें कह देनी है ना। तो ये चीज़ प्रैक्टिस मांगती है ना, और एक्सपर्टीज मांगती है ना, कि यानी कि जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे डिस्क्रिप्टिव को लिखने की, है ना, उतना ही ज़्यादा आप कमांड आपको होगी, है ना, आपके अपने सब्जेक्ट पर, आपके अपने। तो प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। और कोई क्वेश्चन है? एज वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, हमारे साथ में किशन गुप्ता जी भी थे, और हमारे साथ में एक और रिसोर्स पर्सन थे, संजय सिंह भी जी थे, है ना, संजय जी भी। अब क्योंकि टाइम शॉर्ट है, सो आर यू देयर संजय जी एंड किशन जी, आर यू देयर सर? ओके, तो कोई और क्वेश्चन है आप में से पार्टिसिपेंट्स का? एनीवन? ओके, तो मैं आप लोग से यही कहूंगा कि जो है डेस्क्रिप्टिव आंसर्स की प्रैक्टिस करते रहें आप लोग रेगुलरली, है ना, और इसको एनालाइज करें कि आपका कौन सा जो है वो डिफिकल्ट लगता है, आपको कौन सा पार्ट, कौन सा टॉपिक, है ना। ज़्यादातर के लिए लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन जो है वो एक डिफिकल्ट है, लाइब्रेरी कैटलॉगिंग किसी के लिए डिफिकल्ट है ना, किसी के लिए आईटी डिफिकल्ट है, तो उसको भी कवर करने की कोशिश करें, है ना। भाई ये तीन चीज़ें, आईटी का काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है, और लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन और लाइब्रेरी कैटलॉगिंग, ये तो एक बहुत इम्पोर्टेंट है ना। लाइब्रेरी साइंस में ये दोनों चीज़ें, ये दोनों टूल है ना, और ये जो है वो प्रैक्टिकल बेस्ड है ना। तो ये तीन सब्जेक्ट्स जो है वो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और ये डिफ़िकल्ट भी है ना, कुछ के लिए कोई पेपर डिफ़िकल्ट है, कोई के लिए कोई सा एरिया डिफ़िकल्ट है ना। इट डिपेंड्स अपॉन द अंडरस्टैंडिंग, है ना। तो यू मस्ट राइट द आंसर, ठीक है, और फिर उसे इवेल्युएट भी करवाएं, है ना। ठीक है, कि कोई एक्सपर्ट हो जो आपके आंसर को इवेल्युएट कर सके, है ना, कि आपने क्या लिखा है और कैसे लिखना था, और कैसे आप इसको और फर्दर इम्प्रूव कर सकते हैं, है ना। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, और टाइम, विद इन अ टाइम फ्रेम, है ना, क्योंकि वहाँ पर आपके पास में लिमिटेड टाइम होगा। ईएमआरएस तो 3 घंटे का पेपर है, वहीं केवीएस और एनवीएस का 2 ढाई घंटे का है ना। तो उस टाइम फ्रेम में, विद इन दैट टाइम फ्रेम, हाउ विल यू कंप्लीट ऑल द क्वेश्चंस, है ना। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट है। हाँ रेखा जी, प्लीज आस्क। रेखा कुशवाहा जी, दीपक जी, प्लीज आस्क। सर पहली बात तो होस्ट के एंड से शायद अलाउड नहीं है अनम्यूट करना, इसलिए हम बीच में नहीं बोल पा रहा था। और जावेद सर को थैंक यू बोलना चाहूंगा, उन्होंने काफी अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया सर मेरे प्रीवियस प्रश्न का। सर इस एक ये चीज मुझे पूछना था, जैसे कि एनवीएस और एनवीएस केवीएस वाले में भी और ईएमआरएस में भी
जो क्वेश्चन है वो 4 मार्क्स का है। तो हमारे क्या क्या कंपोनेंट्स होना होना चाहिए। हाँ, एक 4 नंबर के प्रश्न पर, जैसे कि अभी सर ने भी शायद बताया कि 100 वर्ड्स 120 वर्ड्स तक ही आपको लिमिट करना है। तो मतलब मेरा क्या अप्रोच होना चाहिए एक आंसर को लिखने के लिए, सो दैट कि अच्छा आंसर हो, इम्प्रेशन अच्छा जाए। Okay. जो भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो सबसे पहले जो कोर पॉइंट है ना, जो कोर चीज़ें हैं, जो कोर डेफिनेशन है जो आपको आती है, तो सबसे पहले आप शुरुआत वहीं से करें। ठीक है, जो चीज़ आप उसके बारे में आपको आता है, और जाहिर है वो आप जो चीज़ें होती हैं मेन पॉइंट हैं, जो कोर एरियाज हैं जो आपको आते हैं, तो वो 2 से 3 लाइन में कवर हो जाता है वो, है ना। आप उसके पास और उससे ज़्यादा आपके पास में और कंटेंट नहीं है, तो अब फिर उसके बाद आप उससे रिलेटेड या उसको और फर्दर एलेबोरेट करें उसको। ठीक है, आपने कोर पॉइंट लिखा, मेन चीज़ें लिख दी, ठीक है। उसके बाद फिर आप उसको एलेबोरेट करिए। ठीक है, पहले से स्टार्टिंग में हमें एलेबोरेट नहीं करना है टॉपिक को, जो क्वेश्चन पूछा गया है पहले हमें टू द पॉइंट बात करनी है ना, कि जो पूछा गया है पहले हम उसी का आंसर दें, है ना। एग्जैक्ट जो आपको याद आ रहा है, दिमाग में है, ठीक है, जो उसके बहुत क्लोज है, वहां से शुरुआत करनी है आपको, उस लाइन से। ठीक है, उसके बाद फर्दर फिर आप जो उससे और रिलेटेड या उसको फर्दर आप और इलेबोरेट कर सकते हैं अपने आंसर को, वो 100 और 120 वर्ड लिमिट को पूरा करने के लिए। ठीक है। ओके, और कोई है क्वेश्चन? और कोई है? हाँ, बाकी और भी चीजें हैं, है ना, हम उसको 1 घंटे के सेशन में तो सारी चीज़ों को कवर नहीं कर सकते हैं, है ना, कि कैसे आपने अपने राइटिंग को लिखना है, आंसर राइटिंग को, और कैसे सिचुएशनल क्वेश्चंस कैसे आपने आंसर करना है ना। तो इट विल टेक टाइम, है ना, बट इट रिक्वायर्ड प्रैक्टिस। ठीक है, ये प्रैक्टिस मांगता है, तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे और उसको प्रैक्टिस करने के बाद में अपने आप आंसर को एवेल्युएट करेंगे, है ना, उतना ज़्यादा आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे, और उतना ज़्यादा आप के चांसेस होंगे, है ना, टीयर 2 क्लियर करने के, है ना। सर मेरा एक ठीक है। क्वेश्चन था। जी, जो सर मटेरियल होगा, स्टडी मटेरियल, वो कैसे प्रोवाइड होगा? वो पीडीएफ में होगा, पीडीएफ आ, फॉर्म में। मतलब ग्रुप में आएगा या कैसे रहेगा उसका? हाँ, ग्रुप में आएगा, ये हो सकता है पर्सनल भी शेयर करा जाए। ओके, हम्म। थैंक यू। Okay, so now I would like to call Miss Soda to wind up the session. Okay, sir. Thank you, sir. Let me once again request whether Sanjay sir is there or the other resource person is available here, or shall we wind up the program? Yes, yes, we can wind up now. Okay, sir. Um, So, friends, Tier 2 preparation requires your structured study, answer writing skills and practices, expert evaluation, and also mentorship. That's why Digital Resource and Training Center is launching a 1 month EMRS KVS NPS Librarian 2026 Tier 2 focused preparation program. Details of the programs will be shared only with the serious aspirants after the session. Before we close, please join our WhatsApp group for updates and study support. Registration details for the paid program will be shared shortly.
Thank you to all our resource persons and participants for making this session successful. We wish you all the very best for EMR's KVS NVS Librarian Test 2026. Stay focused, stay consistent, and selection will be possible. Thank you. Thank you all.